اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی دردناک خبر غزہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی آتنکوادیوں نے غزہ کے سیف زون میں بم گرائے، ایک ہی بار میں 50 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، اور وہ نعرے لگاتے رہے کہ غزہ کو مکمل طور پر صاف کرو۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر سیف زون میں بم گرا کر ایک ہی ساتھ 50 فلسطینیوں کو شہید کیا، اور ایک بار پھر غزہ کا مکمل کنٹرول اسرائیلی فوج نے حاصل کر لیا ہے۔ اسرائیل کی بمباری غزہ میں جاری ہے، اور اس بار بمباری مزید خوفناک ہو گئی ہے۔ جنگ بندی توڑنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ واضح کیا کہ حماس کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی سے پہلے یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر مکمل غزہ پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور یہاں فلسطینیوں کے لیے اب کوئی بھی محفوظ جگہ نہیں بچی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے گزشتہ کل یعنی اتوار کے روز المواسی پر حملہ کیا، جو کہ ایک بین الاقوامی انسانی سیف زون کے طور پر نامزد علاقوں میں سے ایک ہے، اور جنگ سے بے گھر ہونے والے لوگوں کے لیے یہ اکیلا محفوظ علاقہ ہے۔ اس تازہ حملے میں 50 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ المواسی بھی ایک ایسا علاقہ ہے جسے اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں کو خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی چونکانے والی خبر امریکہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکہ میں ہزاروں لوگوں نے پریزیڈنٹ آف امریکہ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے محل کو، ان کے رہائش گاہ کو، ان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور خبریں ہیں کہ تمام 50 اسٹیٹس میں 50 اسٹیٹس جو ہے وہاں پر اب باقاعدہ صدر کے خلاف، ٹرمپ کے خلاف احتجاج آندولن جاری ہے، اور پوسٹر جو ان لوگوں نے پکڑ رکھا ہے اپنے ہاتھوں میں، آندولن کاریوں نے اس پر لکھا ہے کہ ٹرمپ کو ایل سلواڈ جیل بھیج دو، یعنی وہاں کی کوئی جیل ہے، شاید بڑی جیل ہے۔ اب ان لوگوں نے پوسٹروں پر لکھا ہوا ہے کہ ٹرمپ کو جیل بھیج دو۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ناپاک پالیسیوں کے خلاف ہفتے کے روز ہزاروں مظاہرین ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ مظاہرے تمام 50 اسٹیٹس میں ہو رہے ہیں۔ مظاہرین ٹرمپ کی
टैरिफ वार पॉलिसियों और सरकारी मुलाजमतों में बरतरफी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान गुज़िश्ता कल मुजाहिरीन ने आंदोलनकारियों ने ट्रंप की रिहाइशगाह व्हाइट हाउस का घेराव कर लिया। लोगों ने ट्रंप पर शहरियत और कानून की हुक्मरानी को कुचलने का इल्जाम लगाया है। इस तहरीक को 50,501 का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है 50 एहतजाज, 50 रियासतें, एक तहरीक। मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस के अलावा टेस्ला के शोरूम का भी घेराव किया। ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरों का आंदोलन का ये दूसरा दौर है। इससे पहले 5 अप्रैल को मुल्क भर में ट्रंप के खिलाफ आंदोलन, मुजाहिरे, एहतजाज हुए थे। ट्रंप और मस्क की पॉलिसियों के खिलाफ ये मुजाहिरे हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में कोई बादशाह नहीं, मुख्तलिफ शहरों में ट्रंप के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं और वीजा मंसूख करने पर ट्रंप हुकूमत से जवाब मांगा गया है। अमेरिकी अदालत ने गैर मुल्की तलबा को बड़ी राहत दी है। आइए नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क नेपाल, जिस यूं समझिए कि हिंदुस्तान और नेपाल का बड़ा गहरा रिश्ता है, बल्कि शादी ब्याह और रिश्तेदारियां भी होती है। जो नेपाल के बॉर्डर के जो गांव हैं हिंदुस्तान के, वहां से बड़ी खबर आ रही है जो अंध भक्तों को, गोबर भक्तों को और हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों के कान खोल देगी, दिमाग भी खोल देगी, सब कुछ खोल देगी। जी हाँ, खबर आ रही है कि नेपाल में बादशाह और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुके हैं। नेपाल में एक बार फिर बादशाहत की वापसी का मुतालबा उठने लगा है। पड़ोसी मुल्क में बादशाहत की हामी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी के सैकड़ों रहनुमाओं और कारकुनों ने गुज़िश्ता कल यानी इतवार को नेपाल के वजीर आजम की रिहाइश गाह और पार्लियामेंट हाउस के करीब जोरदार आंदोलन किया। बादशाहत की बहाली और मुल्क को हिंदू कौम करार देने का मुतालबा किया। और मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 1500 मुजाहिरीन इकट्ठे हुए और ये ऐलान किया कि हमें बादशाहत चाहिए, बदउन्वान हुकूमत का खात्मा और नेपाल को हिंदू कौम करार दो जैसे नारे लगाए गए। उनके हाथों में बैनर्स और पोस्टर्स भी थे जिन पर ये नारे लिखे हुए थे। नाज़रीन, एक फलस्तीनी सहाफ़ी जिनकी गुज़िश्ता कल शहादत हो गई। जी हाँ, खबर है कि कांस में दस्तावेजी फिल्म की नामजदगी, यानी इनकी जो फिल्म 1.5 साल तक उन्होंने इजराइल के आतंकवाद को और गजा और फलस्तीन की जंग और पूरे हालात को अपने कैमरों में कैद किया और अपने कैमरे में जंग के हर एक मंजर को वो कैद करती रही। 25 साल की फोटो सहाफ़ी फातिमा इजराइल के फ़ज़ाई हमले में शहीद हो गई है। इस हमले में फातिमा के साथ साथ उनके 10 रिश्तेदारों की भी मौत हुई है। गजा में मुसलसल खतरों के बावजूद फातिमा ने अपने कैमरे में हर वो मंजर कैद किया जो वहां हो रहा था और दुनिया को गाजी की कहानी बताने के लिए पाबंद रही। फातिमा जानती थी कि मौत हमेशा करीब है, फिर भी वो गजा की तस्वीर दुनिया के सामने लाने से कभी नहीं पीछे हटी। फातिमा ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर लिखा था कि अगर मैं मरती हूं तो मुझे एक जोरदार मौत चाहिए। मैं सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज या किसी ग्रुप में शामिल एक नंबर बनकर रहना नहीं चाहती हूं, मैं एक ऐसी मौत चाहती हूं जिसे दुनिया सुन सके, एक ऐसा असर जो वक्त के साथ बना रहे और एक ऐसी शबी जो वक्त या मकाम के साथ दफन न हो सके। फातिमा ने न तो ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश की एक बेहद दर्दनाक शक्ल तब दिखाई दी जब शिमाली गजा में उनके घर पर इजरायली आतंकवादियों ने फजाई हमला किया। कुछ ही दिनों में फातिमा की शादी भी होने वाली थी। इस फजाई हमले में फातिमा और उनके कुंबे के 10 लोग भी शहीद हो गए हैं, जिनमें खुद उनकी एक हामिला प्रेग्नेंट बहन भी शामिल है। इस हमले को लेकर इजराइल की तरफ से कहा गया है कि उनका निशाना हमास का एक रुकन था। गौरतलब बात है कि फातिमा की मौत से सिर्फ 24 घंटे पहले एक ऐलान किया गया था कि इजरायली हमले के दौरान गजा में फातिमा की जिंदगी के बारे में एक फिल्म प्रीमियर कांस के साथ मुनक्किद एक फ्रांसीसी आजाद फिल्म फेस्टिवल किया जाएगा और बस कांस में दस्तावेजी फिल्म की नामजदगी के अगले ही दिन फलस्तीनी फातिमा जो एक फोटोग्राफर थी वो शहीद हो गई इजराइल के आतंकवादी हमले में।
नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने ज़ाम्बिया की आ रही है, ज़ाम्बिया से आ रही है। बताया जा रहा है कि एक भारतीय शहरी जिसे रोका गया एयरपोर्ट पर, ज़ाम्बिया के हवाई अड्डे पर, अफसरान ने जब उसका बैग खोला तो वो खुद बैग खोलकर हैरान रह गया और अफसरान भी हैरान रह गए, क्योंकि उसके बैग में 17 करोड़ नकदी और सोने के 7 बिस्किट मिले हैं। ज़ाम्बिया में कस्टम हुक्काम ने एक भारतीय शहरी को गिरफ्तार कर लिया। अफसरान ने उसके पास से 17 करोड़ रुपए नकदी और सोने के 7 बिस्किट स्मगलिंग जब्त किए। उस पर स्मगलिंग का इल्जाम लगा है। यह गिरफ्तारी कैंत कोंडा हवाई अड्डे पर अमल में आई और बताया गया कि यह शख्स दुबई जा रहा था। दुबई जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। खैर, इसका नाम ताहाल यानी अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तो सामने आया है कि ये भारत का रहने वाला है, हिंदुस्तान का शहरी है। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून में मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया भाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।